वहाँ बैठ के खा रहा है तू? गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने लास्ट कल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पे डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग? So mobility is a basic human need. Transportation engineering plays a major role in the development of the human civilization. So transportation solution should be safe, rapid, comfortable, convenient, economical and eco-friendly for both man and material. So इसका definition क्या हो जाएगा? Transportation engineering can be termed as the application of technology and scientific principles or the planning, designing, operation and maintenance facilities for any mode of transportation in order to provide movement of person or goods to be safe, fast, efficient, economical, comfortable, convenient and importantly environmental compatible.
Okay. Next is types of transportation engineering. कितने types के होते हैं? 4 types. First is highway engineering, second is railway engineering, then airport and waterway engineering. So first is highway engineering. Highway engineering is the sub branch of transportation engineering, which deals with the planning, designing, construction, operation, and maintenance roads and bridges and tunnels, ensuring safe, effective, and economic transportation of person and goods. Next, it includes investigation for selection of suitable material for payment design. ओके जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो लाइक मटेरियल पे बेसिक हम या इम्पोर्टेंट होता है उस पर ध्यान देना, क्योंकि जो स्ट्रेंथ देता है वो कौन देता है? मटेरियल्स देते हैं, ठीक है। तो मटेरियल अच्छी प्रॉपर्टीज के होंगे, ठीक है, तो उनका वो उतना ज्यादा स्ट्रेस देंगे, ठीक है। अगर पेमेंट डिजाइन करते हैं तो पेमेंट क्यों अच्छी डिजाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेमेंट अच्छा है, पेमेंट अच्छा डिजाइन किया है, जो भी आपने ज्योमेट्री डिजाइन की है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ अच्छा है, तो नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट है वो भी कम होंगे, ठीक है। अगर हम हाईवे की बात करते हैं, बहुत ज्यादा रफ होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, या ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है, रुक रुक के गाड़ियां चलेंगी, ठीक है, तो ट्रैफिक ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग which includes tools, geometry of tools, fixed time, traffic lights, etc. Next, railway engineering. Railway engineering deal with the planning, designing, construction, operation, and maintenance of the rail transport system. This branch not only a part of a civil engineering, but also connect many engineering streams like mechanical engineering, electrical engineering, and production engineering, etc. The work of a civil engineering in railway to ensure the correct alignment of track, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ओके, कितना कर्व होना चाहिए, इन सबकी स्टडी किसमें की जाती है? ये थ्योरी जो पढ़ी जाती है इस बात में, ठीक है, वो रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ी जाती है। सुटेबल मटेरियल, रेलवे ट्रैक कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, मैंने बताया था मटेरियल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। सुटेबल मटेरियल फॉर रेल्स के लिए हम कौन सा सुटेबल मटेरियल यूज कर रहे हैं, एंड द स्पीड, ठीक है, ये सब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हीकल की स्पीड क्या रहेगी, ओके, एंड सच कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल ऑफ लोकोमोटिव, ओके। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। Airport engineering deals with the planning, designing, construction of terminals, runways of civil airports. Airport engineering is part of mechanical engineering, electronics engineering, and computer science engineering. And airport engineering, like civil, is responsible for design and construction of of airports. The design work, कौन से डिजाइन वर्क होते हैं? डिजाइन द पेमेंट ऑफ रनवेज, एयरपोर्ट मार्किंग, साइट, लाइटनिंग, विजुअल एक्ट, ठीक है, इन सबकी डिजाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एयरपोर्ट इंजीनियर। डिटरमाइन runway orientation, size of runway board, and safety areas and clear zone, etc. Next is waterway engineering.
This is a branch of the transportation engineering, deal with the transportation system through water. It includes both international movement as well as movement of ships from harbor from one place to other in a country. Next, a transportation engineer working on waterways is responsible for design and operation of harbors, decks, etc. for smooth movement of ships or boats to carry passenger as well as goods. Yes, Prashant. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है और आवाज भी आपका कट कट के आ रहा है। क्या? यस मैम प्रशांत, क्या कह रहे हैं आप? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है और आवाज आपका कट कर आ रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? यस मैम, और आवाज भी आपका कट कट आ रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सबके साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है वो बता सकता है, अदरवाइज यस नयन, आपके इधर भी यही दिक्कत हो रही है? कट कट के आ रहा है आवाज आपका। नहीं, अभी आईटी की क्लास हुई थी, उसमें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैम कट कट के आ रहा है इतनी देर से। ओके, ठीक है, सबके साथ शायद ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर वे इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग क्या होता है? यस प्रशांत। प्रशांत, आपको कुछ कहना है? मैं अभी भी नहीं सो रहा है। अभी भी शो नहीं हो रहा है? आपको वैसे मैंने भेज रखा है ना, आपके ग्रुप पे मैंने भेज रखा है ये पीडीएफ फर्स्ट चैप्टर का, तो आप एक बार है ना वो ओपन कर लीजिए, उसमें से देख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए ना, अगर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो। ओके, नेक्स्ट इज वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। तो water resources engineering deal with the collection and management of water as a natural sources. ओके, कलेक्शन कैसे होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वाटर का। ठीक है, जो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग, देन हाइड्रोलॉजी एंड डैम इंजीनियरिंग। हाइड्रोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ओके, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ हाइड्रोलॉजी साइकिल, distribution of earth water resources, rainfall distribution and development of water resources for environmental sustainability. Okay, next is irrigation engineering. So irrigation process is which soil is supplied water artificially for the purpose of raising crops. Irrigation engineering also includes the study and design of work in the connection with river control, drainage of waterlogged areas and generation of hydroelectric power for dams. ठीक है, डैम्स और रिजर्वॉयर्स और कैनाल्स, ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं वाटर को कलेक्ट करने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है? डैम्स में जो फ्लड वाटर होता है या जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। सेम वर्क रिजर्वॉयर का होता है, बट एज अ कंपैरिजन करें डैम की और रिजर्वॉयर की, तो वो रिजर्वॉयर से छोटा स्ट्रक्चर होता है ना। रिजर्वॉयर डैम से छोटा स्ट्रक्चर होता है। डैम में फ्लड वाटर को कलेक्ट किया जाता है, और रिजर्वॉयर कैनाल्स का यूज हम कहाँ करते हैं? इरिगेशन पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है। डैम्स का में जो पानी कलेक्ट होता है, फ्लड वाटर जो कलेक्ट किया जाता है या जो रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है, उसका यूज हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, तो उसका कमर्शियल पर्पस के लिए भी उसको यूज किया जाता है उस वाटर को। इट कंबाइंस विद डैम इंजीनियरिंग एज डैम एंड रिजर्वॉयर
are constructed in order to control and harness the various natural sources of water. Next is environmental engineering. तो environmental engineering जिसमें पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वेस्ट वाटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, जिसके लिए वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में स्टडी करनी होती है सारी, ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, कैसे केमिकल्स को ऐड किया जाता है और कौन कौन से केमिकल हार्मफुल होते हैं, वो सब किसमें स्टडी की जाती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। एक इसको डिवाइड कर रखा है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे हम रो वाटर को पोर्टेबल वाटर में चेंज करते हैं, ठीक है, और कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी हम बोल सकते हैं उसमें जो भी सिस्टम यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लेआउट के बारे में बताया जाता है, लेआउट के बारे में स्टडी की जाती है। वो सब किसमें इंक्लूडेड है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो इन engineering courses, this subject is taught in 2 parts, namely water supply engineering and wastewater engineering. What is water supply engineering? Water supply engineering deal with the treatment of raw water, converting it to the potable water. The subject deal with planning for water demand for upcoming future. The subject also deals with the study of sources of water, surface sources and subsurface sources. Then it covers the whole purification of water process from intake sources to clear water. ठीक है, theory and designing of, इसमें ट्रीटमेंट स्टडी करते हैं हम कि कैसे ट्रीट किया जाता है, कौन कौन से मेथड, ठीक है, का यूज किया जाता है, क्या थ्योरी होती है, क्या डिजाइनिंग होती है, जो भी स्ट्रक्चर से या जो भी टैंक आप उनका यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उनका डिजाइनिंग कैसे होता है, उनका डायमेंशन क्या होता है, वहाँ पे जो वाटर फ्लो हो रहा है उनकी क्या वेलोसिटीज होती है, वो सब किसमें स्टडी की जाती है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। Theory and designing of screening, sedimentation tanks, filtration, disinfection methods, and various other such processes are explained in detail. ठीक है, तो इन सभी को डिटेल्स हम जो लास्ट यूनिट है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप ऑफ लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ पाइप एंड जॉइंट, टाइप्स ऑफ पंप्स एक्सेट्रा आर स्टडीड इन दिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लेआउट्स के बारे में स्टडी करते हैं, पाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं, जॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और पंप्स के बारे में, इनके बारे में स्टडी की जाती है, कैसे वाटर को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ओके, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेनली कंपोनेंट्स हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, कन्वेंस ऑफ वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। फर्स्ट हम वेस्ट वाटर को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से, जैसे कि अलग अलग होता है, किचन, बाथरूम, ठीक है, अलग अलग जगह से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो क्या कन्वेंस होता है, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, उनके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, टर्शरी मेथड्स है ना, अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। देन इसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं सेफली, ठीक है, जो हार्मफुल ना हो एनवायरनमेंट के लिए, कैसे इसको डिस्पोज करते हैं, इसके बारे में स्टडी की जाती है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। So it deals with different types of wastage and their respective purification for recycling water, theory and designing of screening, dirt removal basins, oil and grease removal tanks, sedimentation tanks, trickling filters, settling tanks, sludge digestion tanks, aeration tanks, oxidation cones, septic tanks, imhoff tanks, etc. are studied in this. Okay. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो स्टडीड इन दिस सब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया ये लास्ट कंपोनेंट होता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि इसकी वजह से क्या हो, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको सेफली डिस्पोज करना चाहिए वेस्ट वाटर को। सो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं टाइप्स इंजीनियरिंग के। जो सिविल इंजीनियरिंग के टाइप्स थी या जो ब्रांचेस थी, 7 ब्रांचेस थी। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, देन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन,
वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, सर्वेइंग एंड लास्ट इज कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, इन सातों ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन द सिविल इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सो आपको ये सभी लिख के आना पड़ेगा थ्योरीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्या स्कोप होता है सिविल इंजीनियरिंग का? ठीक है, तो स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में कंपनीज के नेम, अगर क्वेश्चन आता है डिस्कस द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो या पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन टेक्निकल जॉब। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो दिस स्कोप एज पर द जॉब अवेलेबल इज डिस्कस्ड depending upon the interest of a civil engineering. There are 2 types of job available for a civil engineering. First is technical jobs and second is non-technical jobs. ठीक है, 2 parts में divide कर रखा है. What is first is technical job. When a civil engineering does a job relate to civil engineering only. Technical jobs are further classified on 2 bases. 2 basis पे डिवाइड कर रखा है, on the basis of the employer agency and on the basis of the type of work. Okay. So employee agencies मतलब like गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, 3 सेक्टर्स में इनको डिवाइड कर रखा है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में कुछ कंपनीज के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, CPWD, MES, BRO, CWC, CPB, IOFS, सर्वे ऑफ इंडिया, रेलवेज। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, जिसमें सिविल इंजीनियर के स्कोप होते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर। ओके, पब्लिक सेक्टर लाइक BPCL, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ONGC, सेल, IOCL, CIL, गेल। ठीक है, ये कुछ कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। ठीक है, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही होती है, सेमी गवर्नमेंट होती है कंपनीज। एंड द लास्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो टॉप कंपनीज के नेम हैं दैट इज L&T, लार्सन एंड टर्बो, DLF हो गया, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिल, रिलायंस, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ कंपनी के नेम हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो इस कंपनीज के नेम आपको लिख के आने पड़ते हैं। कंपनीज को डिस्कस नहीं करना होता है यहाँ पे। ओके, कंपनीज के नेम लिख के आने होते हैं ओनली। कंपनी में क्या करना होता है ये नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, 2 टाइप्स डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज द डिजाइन वर्क एंड सेकेंड इज साइट वर्क। साइट वर्क मीन्स जो फील्ड वर्क जो होता है वहाँ पे साइट वर्क होना चाहिए। ठीक है, साइट इंजीनियर परफॉर्म टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सुपरवाइजरी रोल ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। साइट वर्क में एक टीम वर्क करती है, साइट मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो उसमें जो आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्लानर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर और सर्वेयर, इन सबके एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो वर्क को कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट करें। ओके, डिजाइन वर्क क्या होता है? डिजाइन वर्क इन्वॉल्व एवरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ एनी बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिजाइन वर्क को कंप्लीट किया जाता है। ये नॉन फील्ड या नॉन साइट वर्क होता है। ठीक है, ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं आराम से। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे वर्क किया जाता है, डिजाइन पे, स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, उनके लोड्स पे, स्ट्रेसेस पे, कितना लोड स्ट्रेसेस बियर कर सकता है कोई स्ट्रक्चर, उस अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन जो सॉफ्टवेयर है दैट इज ऑटोकैड। ठीक है, ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग में भी वर्क करता है। वो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग टाइप ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है, टूल्स के लिए अलग होता है। टूल्स के लिए मतलब सेम सॉफ्टवेयर है बट उससे अलग अलग टाइप के वर्क कर सकते हैं ना। जैसे मैप के लिए, बिल्डिंग मैप के लिए, डिजाइन करने के लिए हम ऑटोकैड का यूज कर सकते हैं। एक ज्वेलरी डिजाइन के लिए भी ऑटोकैड का यूज करता है। तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स के डिजाइन के लिए भी ऑटोकैड का यूज कर सकता है। ओके, तो ऑटोकैड इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये डिजाइन वर्क कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल। यस नफीस। मैम प्रश्न आंसर है कौन चीज तो ओके नेक्स्ट इज नॉन टेक्निकल जॉब। ओके, नॉन टेक्निकल जॉब जो भी टेक्निकल फील्ड से बिल्कुल अलग होती है वो सारी नॉन टेक्निकल जॉब्स हो जाती है। कुछ नेम्स यहाँ पे दे रखे हैं जॉब्स के, दैट इज AAO, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, IT इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, तो ये कुछ नेम्स है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन सोसाइटी, कि क्या रोल होता है सोसाइटी में सिविल इंजीनियरिंग का। ओके, फर्स्ट इज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। Civil engineering are involved in creating a structure for human shelter, office, and other such activities. So the main role of civil engineering consider is to design and build structure. From the design work to the execute work, a civil engineer holds the complete responsibilities. ठीक है, डिजाइन वर्क से लेके उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग की रहती है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ ऑफ रोड ऑफ द कंट्री पे डिपेंड करती है कि कैसी कंडीशन है रोड्स की। ओके, रोड आर द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Civil engineer construct road not only the betterment of the human being in comfort sense, but also the commercial sense, as roads are main means of transporting goods as well. Next is design and construction of bridges. तो ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम, ठीक है, क्रॉस करके कोई भी फिजिकल ऑब्स्टेकल को कंफर्टेबली क्रॉस करके टाइम बचाने के लिए जा सके एक रास्ते से दूसरे। Bridges are the structure which are built over water bodies, valleys, and even roads in order to cross this physical obstacle comfortably, still not closing the way underneath. Bridges are built since ages by civil engineers, site investigation to design, to execute, and to operate the and maintenance of bridge. A civil engineer is involved in every step of work of bridge construction. Same है, जो टॉपिक्स आपके हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको लिख के आना है क्वेश्चंस में। ठीक है, कैसे अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें या रोड्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, ठीक है, तो क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं वो स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स का डिजाइन कैसे किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है, ठीक है, ये सब लिखना है। और व्हाट इज डैम? डैम इज द बैरियर और ऑब्स्टेकल टू रेस्ट्रिक्ट फ्लो of water of any surface and underground stream in order to create reservoir for storage of water. ठीक है, क्यों बनाया जाता है? वाटर को स्टोर करने के लिए, फ्लड वाटर को स्टोर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, सो this reservoir not only supplies the flood but also used for providing water for irrigation work, human consumption, generation of electricity, industrial benefits, and many other work. Geological investigation for selection of dams, design, analysis of dams, construction of dams, and their operation and maintenance are done by a civil engineer. Okay, next is water supply. वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में मैंने आपको बता दिया था कैसे वाटर सप्लाई इम्पोर्टेंट है, कैसे रोल होता है एक सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग वाटर फ्रॉम रिवर और लेक टू पोर्टेबल वाटर सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। So water treatment plants are designed and built by civil engineers, where raw water is treated and various physical and chemical attributes of water are brought under safe limits prescribed for human consumption for drinking purpose. Okay,
Next is wastewater management. The wastewater release from toilet, kitchen of a household or wastewater release from industries stands as a big challenge for a civil engineer to be disposed safely. Okay, कहीं कहीं ये वाटर को ट्रीट किया जाता है, देन उसको यूजेबल बनाया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस. ओके, कुछ कुछ कंट्रीज लाइक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे वेस्ट वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज इरिगेशन वर्क. ओके, इरिगेशन वर्क में कैसे यूज किया जाता है? सेम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स बनाई जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, उनको डिजाइन किया जाता है. वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके उनको कैसे वाटर को रेगुलेट करना है, ठीक है, फील्ड में इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का रोल होता है. एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज सर्वेइंग वर्क. मैप्स को डिजाइन करने के लिए, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए, या पॉइंट्स लोकेट करते हैं तो बाउंड्रीज बनाने के लिए. ठीक है, जब भी कोई मैप बन रहा होता है बाउंड्रीज के लिए, सो सर्वेइंग वर्क वेरी इंपॉर्टेंट. Civil engineer does the surveying work. Surveying work includes measurement of distance horizontal as well as vertically. Surveying is used for commencement of any construction work, as we need to first establish the outline of the structure. Also for creating map, surveying is done. Okay, ये हम पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक्स. So ये कुछ रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग थे. Okay, next topic is impact of infrastructure development of economy of country. ये टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है. ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके क्लास, थैंक यू. अब कल कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक. अभी आप लीव कर सकते हैं. थैंक यू क्लास.